नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज. सेम सीरीज का यू हैव टू फाइंड 20th टर्म. तो सबसे पहले भी सीक्वेंस पता लगाते हैं कौन सा है. दिस इज 2 4 6 8. तो इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम an यानी कि nth टर्म वी कैन फाइंड. दैट विल बी व्हाट. दिस इज माय 2n. देन अगला जो नंबर है दैट इज कमिंग बाय एडिंग 2 टू द गिवन टर्म. So this is what 2n plus 2. So this is my nth term. So I have to find the 20th term. To put n is equals to 20. So you get 2 into 20 plus 2. So this is 40 and this is 40 plus 2 42, which gives you 1680. This is another series which has terms 1 cube upon 1, 1 cube plus 2 cube upon 1 plus 3. The pattern is continuous. 1 cube 2 cube 3 cube 1 3 5. अगर आप नीचे देखो तो this is an AP series with common difference 2, or you can say that sum of odd numbers, and this is what sum of cubes of natural number. तो what will be the last term? अगर आप इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हैं तो कंटिन्यू करते करते जो आपकी लास्ट टर्म आएगी दैट विल बी 1 क्यूब 2 cube 3 cube and so on n cube upon 1 plus 3 plus 5 up to n terms. alright. तो अगर ये मेरी लास्ट टर्म है तो आई कैन राइट दिस टर्म एज tn and this is what sum of natural numbers taking cube, and this is what sum of AP series for n terms having common difference 2. So that would be n by 2 2a plus n minus 1 into 2. So this is tn only. So we get this is n into n plus 1 by 2 whole square, and this gives you, when you simplify this 2 plus 2n minus 2 will be cancelled, and this 2n and n gives you 2n square. 2 will again cancel. So this is what n square only. When you further simplify you get n square n plus 1 whole square by 4, and denominator में फिर से आपका n square है तो this will be cancel out. So you are left by 1 by 4 n square plus 1 plus 2n. सो अब हमें इस पैटर्न में ये आपका nth टर्म आया है tn आया है तो 1 बाई 4 n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 आया है. नाउ यू हैव टू फाइंड सम ऑफ दीज टर्म्स. तो सिग्मा tn रिप्रेजेंट sn, so that gives you 1 by 4 sigma of n square plus 2 take outside sigma of n plus sigma 1. So this is what 1 by 4 n square is what n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Then sigma of n is what n into n plus 1 by 2. Then sigma of 1 is n. So by simplifying this you get n upon 24, then n plus 1 2n plus 1, you get n upon 24 2n square plus 9n plus 13 as your answer. Important one question, show that this is equals to this. okay. इसमें क्या है आपको देखो n टर्म ऑलरेडी गिवन है, यहाँ भी n टर्म ऑलरेडी गिवन है. तो व्हाट आई कैन राइट दिस इज व्हाट सम ऑफ n into n plus 1 whole square, and this is what sum of n square n plus 1. So now when you open this you cannot cut this because this is sum. तो sigma ऑपरेशन लगने के बाद जो आंसर आएगा then you can apply. So sigma of n into n plus 1 whole square gives you, सबसे पहले हम n plus 1 का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं. तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 अपॉन n क्यूब प्लस n स्क्वायर. ओके. So now you get sigma of n cube plus 2 times sigma of n square plus sigma n, and in denominator you get sigma n cube plus sigma n square. So now we have to put the values. So n cube gives you
n into n plus 1 by 2 whole square. So I can simply write this and this as 4, and sigma of n square is 2 times n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, and this is sigma of n is n into n plus 1 by 2. Same for denominator, n cube is n square n plus 1 square by 4, then 2n into n plus 1 2n plus 1 by 6. Sorry, not this 2, ये आपका न्यूमरेटर में था सिर्फ. All right, now take common. So when you take common, you get this, cancel this with this. This is not square. Okay, so अब इसमें सिंपल आपने एलसीएम लेके सॉल्व करना है. तो यू विल गेट 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10, एंड देन यू विल गेट 3n स्क्वायर प्लस 17n प्लस 2. अब इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म लगा के 30 है, तो 6 and 5 would be the factor, and then after factorization you will get 3n plus 5 n plus 2, and then नीचे आपका 3n plus 1 and n plus 2 factor बनेगा. This will be cancelled out. This is what we have to prove, 3n plus 5 upon 3n plus 1. Next question is, a farmer buys a used tractor for rupees 12,000 and he pays rupees 6,000 cash, and he agrees to pay the balance in annual installment of rupees 5,000. यानी कि 6,000 बैलेंस रहा उसका, तो हर साल उसने 500 देनी है. तो 500 अगर देगा तो 6,000 के आपके 12 इंस्टॉलमेंट्स बनेंगे. क्लियर है? ओके. प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन दी अनपेड अमाउंट. जो भी आपका अनपेड अमाउंट बचता चला जाएगा, जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब उसने देना है तो 500 देना है, तो पहले आप 6,000 दे चुके हो. उसने बोला कि आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ मुझे 6,000 के ऊपर इंटरेस्ट भी दोगे, तो उस पर इंटरेस्ट दोगे तो आप कैलकुलेट कर लोगे. फिर आपके पास 500 चले गए. नाउ यू आर लेफ्ट विथ 5,500 ओनली. तो आपका स्लोट्स कैसे बनेगा? पहले आपका 6,000 बैलेंस था, फिर 5,500 बैलेंस था, देन आपका 5,000 बैलेंस था, फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है पहला इंस्टॉलमेंट में, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में इसका इंटरेस्ट, थर्ड इंस्टॉलमेंट में इसका इंटरेस्ट, एंड सो ऑन. यू हैव टू पे द इंटरेस्ट and you have to tell that how much will tractor cost him. See how we'll do this. सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इंटरेस्ट paid along first installment. तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपके पास 12,000 था. 12,000 में आपने 6,000 पे कर दिया, 6,000 बैलेंस है. 6,000 जो बैलेंस है उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, तो फर्स्ट इंटरेस्ट जो आपका जाएगा, तो इंटरेस्ट का जो रेट है दैट इज़ 12%. तो 6,000 का आपको 12% देना है, तो यू विल गेट ₹720. so this is your first interest. now the balance is left 5,500. तो आप लिखोगे इंटरेस्ट पेड अलॉन्ग सेकेंड इंस्टॉलमेंट. तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपका 5,500 का था. नाउ 5,500 इंटू 12 अपॉन 100 दैट गिव्स यू 660. तो इंटरेस्ट पेड अलॉन्ग थर्ड you will get 5,000 into 12 into 1 upon 100 comes out 600. अगर आप देखो तो इंटरेस्ट का जो सीक्वेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? पहला था 720 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आपका आया 660, देन 600. तो नेक्स्ट वुड बी व्हाट? 540.
कैसे पता चला? दिस इज़ एन AP सीक्वेंस, AP बन रहा है जिसका फर्स्ट टर्म आपका क्या है 720 एंड कॉमन डिफरेंस इज 60. व्हाट वी कैन डू हियर, अगर मैं सीधा पहले इंटरेस्ट का सम निकाल लूँ जो मेरा 12 ईयर्स में जाएगा, क्योंकि वो हर साल 500 दे रहा है, तो 6000 आपके 12 ईयर्स में जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कितनी होगी यहाँ पे 12 होगी. तो हम अगर S12 निकाल लें तो सम ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा. तो सम ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 12/2 इंटू 2 इंटू 720 प्लस 11D, डिफरेंस इज 60. तो दिस इज व्हाट 6 इंटू 1440 माइनस नेगेटिव आ रहा है नॉट पॉजिटिव, तो दिस इज माइनस 660. सो यू गेट इंटरेस्ट ₹4680. दिस इज़ योर इंटरेस्ट. अब क्वेश्चन ये था कि आपको ट्रैक्टर जो भी आपने परचेज़ किया उसके लिए कितना पे किया है उसने, तो ऑब्वियसली जितने का खरीदा है वो तो देना ही पड़ेगा. 12,000, 6,000 पहले दे चुके हैं, 6,000 500 करके दिए, तो दैट इज़ 12,000. तो टोटल कॉस्ट वुड बी व्हाट, टोटल कॉस्ट वुड बी 12,000 प्लस जो आपने इंटरेस्ट पे किया है, तो 4680. That gives you 16,680 rupees. Next is a person writes a letter to 4 of his friends and he asks each of them to copy the letter and mail to 4 different persons with instruction that they move change similarly. What does it mean? अगर आप 4 लोगों को लेटर लिखते हो तो आपने जिन 4 लोगों को लेटर मेल किया वो फर्दर 4 लोगों को मेल करेगा ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. तो स्टार्टिंग में जो आपने लेटर लिखा वो 4 लोगों को लिखा. अब वो 4 लोग कितने लोगों को लिख रहे हैं 4 4 4 4 गिव्स यू 16. देन जो 16 है वो फर्दर आपका 4 4 एक सेट आपको 4 एंट्रीज दे रहा है. ये एक सेट से आपको 16 एंट्रीज आएंगी, यहाँ से फर्दर आपको 16 एंट्रीज आएंगी, 16 यहाँ से आएंगी, 16 यहाँ से आएंगे एंड 16 एंट्री आपको यहाँ से आएगी. सो वी गेट 64 एंड सो ऑन. इफ यू चेक दिस सीरीज, दिस इज एन GP सीरीज. अब क्वेश्चन ये है, एक आपको जो एनवलप जो भी आपका एक मेल है उसको 50 पैसा लगता है एक लेटर को मेल करने में, तो आपने 8th सेट ऑफ लेटर को कितना लगेगा, ये फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है, ये थर्ड सेट है, ऐसे ऐसे करके अप टू 8 टर्म्स आपको सम निकालना पड़ेगा एंड फिर आपको 50 पैसे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नाउ सिंपल, SN इज इक्वल्स टू व्हाट, सॉरी, SN इज इक्वल्स टू A into R to power n minus 1 upon R minus 1. So first term is 4, ratio is 4, 8 minus 1, 4 minus 1, it gives you 4/3 into 4 to power 8 is 2 to power 16. 2 to power 16 gives you 65536 minus 1, and this is what 4/3. This is 2185, 4 into 21845, which is equals to 87380. So cost of one mail is 87380. Oh sorry, rupees 50 पैसा. देन आपको 50 पैसा अगर एक का कॉस्ट लगा, सो दिस इज ₹1/2, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, हाफ इंटू 87380 गिव्स यू 43690. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन डिपॉजिटेड ₹10,000 इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट. फाइंड अमाउंट इन 15 years since he deposited the amount also and calculate the amount after 20 years. तो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट ईयर आपका इंटरेस्ट लगा 5%, रेट आपका 5% ही रहेगा और सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला कंटिन्यू होगा, बट जो अमाउंट है आफ्टर 1 year वो ऐड हो रही है आपकी. सो वी हैव टू फाइंड द अमाउंट. तो सबसे पहले हम निकालते हैं अमाउंट एट दी
एंड ऑफ 1 ईयर, फर्स्ट ईयर में जो आपका अमाउंट आएगा, आपका 10,000 अमाउंट था। मतलब क्या है कि आपको हर साल के एंड में आपको बैंक से क्या मिलता है, तो 10,000 इंटू रेट आपका 5% है, 1/100 विच कम्स आउट 10,000 प्लस 500 विच इज़ 10,500। अमाउंट यही रहेगा आपका सेकेंड ईयर में भी। तो मीनिंग बाय जो प्रिंसिपल है आपका, अमाउंट एट दी एंड ऑफ सेकेंड ईयर, बिकॉज वो अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर रहा, तभी आपको इंटरेस्ट मिलता है। सो दिस इज़ वो 10,000 प्लस 10,000 into 2 into 1/100, that comes out, this is 5, so this comes out 11,000। ऐसे करते 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 आपको आप सीक्वेंस चेक करो तो यू गेट 10,500 देन 11,000 देन 500 और ऐड हो गया 11,500 एंड सो ऑन। आपको 15 ईयर्स के एंड में अमाउंट निकालना है। सो इफ़ यू चेक दिस सीरीज सीक्वेंस जैसे ना AP सीक्वेंस, तो AP सीक्वेंस है तो आपको इसका सम निकालना है 15 टर्म्स का, सॉरी नॉट सम, क्वेश्चन देखो जो आपका अमाउंट है वो तो 10,000 ही रहेगा क्योंकि आपने 10,000 एक बार डिपॉजिट किया है। सो एट द एंड ऑफ 15th, यानी कि यू हैव टू फाइंड 15th टर्म। So what will be my 15 term? 15 term would be A plus 14D। कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इसको सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला से कर देते हैं, बट उस केस में आपका क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। आंसर सेम आएगा बट कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाती है, तो इसीलिए हम इस पर AP या GP अप्लाई करते हैं। GP वाला सम भी आता है कि इंटरेस्ट वाला, विल डू दैट। तो फर्स्ट टर्म इज़ वॉट 10,500 plus 14 and the difference is 500, so you get this 17,500। अच्छा, अगर पूछा होता कि इन 15 ईयर, दिस इज एट द एंड ऑफ 15 ईयर, अगर इन 15 ईयर पूछा है तो व्हाट डज इट मीन कि इन ईयर आपका स्टार्ट ही हुआ है तो वहाँ तक आपका कितना है, तो इन दैट केस यू विल फाइंड T14 नॉट 15। सो अगर आपसे पूछा जाता है इन 15 ईयर्स, इन 15 ईयर पूछा तो यू विल फाइंड T14, दैट विल बी A plus 13D। सो माई फर्स्ट टर्म इज 10,000 plus 13, the difference is 500, in that case you will get the answer 17,000। also they've asked at the end of 20 years, तो at the end के केस में आप स्टार्ट करोगे A plus 19D से। so A is again 10,500 plus 19 into 500 and you get 20,000। Next question is, a manufacturer reckons that the value of machine which cost him rupees this will depreciate each year by 20%। Find the estimate value at the end of 5 years। क्या उसमें है, इनिशियली जो मशीन की वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू जो है मशीन की, दैट इज़ वॉट 15,625 एंड डेप्रीशिएट का मतलब है कि वैल्यू आपकी कम हो रही है बाय 5% ईच ईयर। तो अगर हम चेक करें वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी वॉट 625। देन आपका नॉर्मली क्या होता है, 1 प्लस रेट आप ऐड कर देते हो, इसमें 1 माइनस R/100, डेप्रिशिएशन में माइनस होता है, एंड टाइम हम 1 ईयर के एंड की बात कर रहे हैं। तो 15,625 इज़ वॉट 1 माइनस 20/100 टू पावर 1, 15,625 दिस इज़ 80/100 विच इज़ 4/5। अगर हम सेकेंड ईयर के एंड की बात करें, तो वहाँ पे क्या होगा, 15,625 इंटू यहाँ पे इसका पावर 2 हो जाएगा, तो 4/5 स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे जो फिफ्थ ईयर होगा, फिफ्थ ईयर के एंड में, फिफ्थ एंड में आपका क्या आएगा, 15,625 इंटू 4/5 टू पावर 5। So you got 15,625 into 4 to power 5 upon 5 to power 5, and this is what 5 to power 6, 5 to power 6, 4 to power 5 upon 5 to power 5. This is what 5 into this, I can write 2 की power
2 5, and then this is what 2 की part 10, and 2 की part 10 is 1024, and this will be now 5120.